Good morning, my dear students. Welcome back. In today's class, we are going to start the last topic of this chapter, excretion. In the previous video, we have done the first three topics of this chapter, life process. That is nutrition, respiration, and transportation. And today, we're going to discuss excretion. Excretion, excretory system, urinary system, and the units of kidney, that is nephron. So these are the main topics that we are going to discuss in this video. Let's start with the definition of excretion. The conduction, removal, separation of nitrogenous substance or toxic substance from the blood is called excretion. Like urea, uric acid, and creatine. These are the biomolecules which are present in our blood and that are toxic substance for our body. These are the toxic substance and it has to be removed from the blood. Who remove this? Which organ remove this toxic substance? Answer is kidney. Answer is kidney. Or you can say our human excretory system that consists of number of components like pair of kidney, number 2 ureter, ये भी पेयर में होता है पेयर, नंबर 3 urinary bladder, ये सिर्फ अकेला होता है urinary bladder, and the last is ureter. All components are labeled on this side. You can see in the diagram. This is complete human excretory or human urinary system. यहाँ पर एक वर्ड यूज करते हैं बेटा urinary excretory. You can see the diagram of this system. And you can also see these four main components because components make the system. Components ही बनाते हैं system को, ठीक है? Kidney, ureter, urinary bladder, urethra. These are the main components that make human excretory or urinary system. What is the function of excretory system? Same, the definition of excretion: the removal of toxic substance or you can say nitrogenous substance. Example: urea, uric acid, creatine from the blood, हमारे blood से remove करना. It is essential. Why it is essential? Because if it is present in our blood, it creates a lot of problem. So वो क्या है जिससे बॉडी से बाहर चले? ब्लड से ठीक है रिमूव हो गया, लेकिन किस फॉर्म में बाहर जाता है? बॉडी से किस फॉर्म में एलिमिनेट होता है? यूरिन की फॉर्म में. जो हमारी बॉडी में यूरिन बनता है उसके अंदर ये टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं. वो एक्चुअली में ब्लड से निकला हुआ एक लिक्विड है जिसको हम यूरिन बोलते हैं. दैट हैज टॉक्सिक सब्सटेंस. Urine is a liquid that is eliminated from the blood or from the body and that contains toxic substance. It is essential, बहुत जरूरी है. You can say this is the filtration in your body. आपकी बॉडी के अंदर भी एक फिल्ट्रेशन होती है. आपको ब्लड की फिल्ट्रेशन, उसको बोलते हैं ब्लड फिल्ट्रेशन. कौन करता है ब्लड की फिल्ट्रेशन को? योर कंप्लीट ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम फिल्ट्रेशन करता है. बट इन सब में जो मेन है वो किडनी है जो फिल्ट्रेशन करती है, ठीक है? क्योंकि जो लंग्स है वो फिल्ट्रेशन नहीं करते, वो तो आपके ब्लड के अंदर ऑक्सीजन को रिफिल करते हैं, लेकिन जो ब्लड के अंदर टॉक्सिक सब्सटेंस है उनको भी रिमूव करना है तो वो फिल्ट्रेशन करती है आपकी किडनी, ठीक है? किडनी मेन फिल्टर करती है, वो ब्लड को रिसीव करती है, ब्लड को वापस भेज देती है, लेकिन ब्लड से जो फिल्ट्रेट है, जो रिमूव किया सब्सटेंस है, वो यूरिन की फॉर्म में विद द हेल्प ऑफ यूरेटर सेंड कर देती है यूरिनरी ब्लैडर को. यूरिनरी ब्लैडर एक पाउच है जो रिसीव करता है यूरिन को और विद द हेल्प ऑफ यूरेथ्रा बॉडी से बाहर एलिमिनेट कर देता है. सो दिस इज योर यूरिनरी सिस्टम. अब हम डिस्कस करते हैं, स्टार्टिंग करते हैं किडनी से कि किडनी क्या है. किडनी एक बीन शेप्ड स्ट्रक्चर है हमारी ह्यूमन बॉडी में जिसका जो आउटर सरफेस है वो कन्वेक्स है और जो इनर सरफेस है वो कनकेव शेप की. कन्वेक्स कनकेव शेप होते हैं फिजिक्स में, कुछ वैसी शेप होती है किडनी बीन्स की. और जो आप ये स्पेस देख रहे हो दोनों किडनी में, इस स्पेस को हम बोलते हैं हाइलस. जो बीच का ये स्पेस है, दिस स्पेस इज कॉल्ड हाइलस. इसको बोलते हैं हाइलस, ठीक है? दिस हाइलस रिसीव, अब दो किडनी है तो कितने हाइलस होंगे?
दो हाइलस होंगे, ठीक है ना। अब दोनों हाइलस क्या कर रहे हैं, अगर मैं किसी एक हाइलस की बात करता हूँ, किसी एक किडनी की बात करता हूँ, तो एक किडनी के अंदर यू कैन सी 3 वेसल्स, आप 3 वेसल्स देख सकते हो, 1 2 3, ठीक है। जो रेड कलर की वेसल्स है, अगर मैं सेंट्रल की बात करता हूं तो 2 मेन वेसल्स आ रही हैं आपकी किडनी एक्सक्रीटरी सिस्टम में। कौन कौन सी, क्योंकि देखो जब मैंने एक्सक्रीटरी सिस्टम बताया तो मैंने सिर्फ 4 कंपोनेंट्स बताए, पेयर ऑफ किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा। लेकिन मैंने इसमें डिस्कशन नहीं किया वेना कावा का या अओर्टा का, क्योंकि वो उसका पार्ट नहीं है, मेन पार्ट नहीं है, इसके सेकेंडरी कंपोनेंट्स हैं। वेना कावा वो पाइप है जो पूरी बॉडी से आपके डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वापस लेके जाती है हार्ट में, और अओर्टा वो पाइप है जो हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को वापस लेके आती है बॉडी में, और बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में, सिर्फ किडनी ही नहीं, डिफरेंट पार्ट्स में अओर्टा जाती है। लेकिन जब उसको किडनी में डिवाइड होना होता है तो अब पाइप तो एक है, अब अओर्टा क्या करती है, देखो मैं एरो से शो किया, मैंने जो रेड कलर आप देख रहे हो यहाँ पर रेड कलर मैंने अओर्टा शो किया, यानी अओर्टा के पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, और मैंने ब्लू कलर शो किया वेना कावा से, मतलब उसके पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, और एरो भी शो किया है कि ब्लड आ रहा है जा रहा है, तो एरो से पता चलता है कि अओर्टा के अंदर ब्लड आ रहा है। अब पाइप एक है, किडनी 2 है, अओर्टा हैज टू डिवाइड इटसेल्फ, उसको अपने आप को डिवाइड करना होगा, और वो कर भी लेती है, अपने डिवाइडेड पार्ट को वो दोनों किडनी के अंदर भेज देती है। उन डिवाइडेड पार्ट्स को हम क्या बोलते हैं, रीनल आर्टरी। दिस इज फर्स्ट रीनल आर्टरी एंड दिस इज सेकंड रीनल आर्टरी। ये दोनों क्या करती हैं, जो अओर्टा ब्लड लेके आ रहा है उसको किडनी में ट्रांसफर कर देती है, किडनी के अंदर ब्लड आ जाता है। जो सेकंड वेसल है जिसका नाम वेना कावा है, वो ब्लड को वापस लेके जाती है। लेकिन 2 किडनी है तो 2 किडनी से एक तो वेना कावा आने से रही, तो 2 यहां पर क्या आती हैं, 2 स्मॉल वेना कावा आती है जिसको हम बोलते हैं रीनल वेन। वो क्या करती हैं, वो किडनी से ब्लड लेती हैं, दोनों किडनी से दोनों ब्लड लेती हैं। 2 यहां पर रीनल वेन है, एक रीनल वेन ये और एक आप देख सकते हो दिस साइड ये, ठीक है। अब यहां पर हम देख रहे हैं, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, यहां पर हमारे पास 2 रीनल वेन है, 2 रीनल वेन्स फ्रॉम द 2 डिफरेंट किडनीज ब्रिंग back blood, use blood, or you can say deoxygenated blood, receive, bring back, you can say 2 renal vein bring back deoxygenated blood from the 2 kidney into a single vena cava, और सिंगल वेना कावा क्या करेगी, उस ब्लड को हार्ट के पास ले जाएगी, उसके राइट आर्टरी में, ठीक है। लेकिन यहां सिर्फ क्या ब्लड सिर्फ पास होने के लिए आया था या कुछ और काम हुआ है, यहां पर क्या हुआ है, जो ब्लड आया था अओर्टा के थ्रू उसके अंदर टॉक्सिक सब्सटेंस थे, था तो वो ऑक्सीजनेटेड लेकिन वो प्योर नहीं था, उसके अंदर कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस थे, तो वो टॉक्सिक सब्सटेंस किडनी ने रिमूव कर दिए और उसने उसको सेंड कर दिया 2 यूरेटर में, यू कैन से दिस इज यूरेटर, और यूरेटर को जो सेंड किया है उसने यूरिन की फॉर्म में किया है, यूरिन की फॉर्म में, और यूरिन क्या करेगा, फिर यूरेटर से होता हुआ यूरिनरी ब्लैडर में जाएगा और यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा के थ्रू बॉडी से बाहर, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हो कि एक हाइलस में एंट्री कितने की हो रही है, एंट्री सिर्फ एक पाइप की हो रही है और जा कितने रहे हैं, 2 पाइप आउटलेट यानी बाहर लेके जा रहे हैं सामान को। अब आपको बच्चों ये पता चला कि जो रेड कलर की पाइप है इट ब्रिंग्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द किडनी बट इट कंटेन्स सम टॉक्सिक सब्सटेंस। बट ब्लू कलर पाइप जिसको वेना कावा बोलते हैं, इट ब्रिंग्स द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द किडनी एंड सेंड टू द हार्ट, बट दैट ब्लड कंटेन नो टॉक्सिक सब्सटेंस इफ किडनी इज हेल्दी। अगर किडनी हेल्दी है तो इसकी ये बेशक आपका ये डीऑक्सीजनेटेड है लेकिन इसके अंदर कोई टॉक्सिक सब्सटेंस नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि वो तो किडनी ने रिमूव कर दिया और उसको सेंड कर दिया आगे। तो ये था आपका किडनी का, आपका यूरिनरी सिस्टम का स्ट्रक्चर। क्वेश्चन ये राइज होता है कि किडनी में ऐसा क्या होता है कि ये टॉक्सिक सब्सटेंस रिमूव हो जाते हैं। किडनी बनी होती है आपके कुछ यूनिट से जिनको बोलते हैं हम नेफ्रॉन। क्या बोलते हैं बच्चों, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन्स आर द बेसिक फिल्टरिंग यूनिट ऑफ द किडनी। कई मिलियंस, अगर मैं एक किडनी की बात करता हूं तो इसके अंदर मिलियंस नेफ्रॉन होते हैं। नेफ्रॉन वो सेल है जिनसे मिलके किडनी बनती है। तो एक्चुअली में जो वर्क कर रहे हैं फिल्ट्रेशन का वो नेफ्रॉन सेल कर रहे हैं, इसलिए हम बोलते हैं पूरी किडनी वर्क कर रही है, लेकिन वर्क तो आपके नेफ्रॉन सेल कर रहे हैं जिनसे मिलके किडनी बनी है। सो नेक्स्ट आवर ड्यूटी इज टू अंडरस्टैंड द फंक्शन एंड स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। लेट्स सी द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन।
Yes, my dear students, you can see the structure or can say diagram of nephron cell. This black color structure is nephron cell. ये क्या है? नेफ्रॉन सेल है. सिर्फ ब्लैक कलर के स्ट्रक्चर को आपने देखना है. मैंने अभी लेबलिंग नहीं की है, मैं लाइव लेबलिंग करूंगा जिससे आपको पता चल जाए कि कौन सा पार्ट कहाँ पर है. तो जो ब्लैक कलर का स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है ये है नेफ्रॉन सेल, और इसके चारों तरफ एक वेसल्स ने इसको रैप किया हुआ है, लपेटा हुआ है. वो है आपकी आर्ट्रियोल और वेन्यूल, यानी आर्टरीज और वेन्स. ठीक है ना. तो सबसे पहले हम लेबलिंग करते हैं नेफ्रॉन सेल की. ठीक है. नेफ्रॉन सेल का जो ये हेड है, इस हेड का नाम है बोमेन कैप्सूल. क्या नाम है इसका बच्चों? बोमेन कैप्सूल. ठीक है. नेक्स्ट है जो ये वाला पार्ट है, जो ये पार्ट आप देख रहे हो, इसको बोलते हैं हम PCT, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल. प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल. जो ये पार्ट आप देख रहे हो, ये वाला पार्ट यू शेप का, दिस इज लूप ऑफ हेनले. एंड दिस पार्ट, ये वाला पार्ट, ये है बच्चों DCT, डायस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल. कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल तो सेम ही है, बट डी का मतलब क्या है यहां पे? डायस्टल. ठीक है. और जो लास्ट पार्ट ये देख रहे हो, दिस इज कलेक्टिंग ट्यूब. दिस इज कलेक्टिंग ट्यूब ऑफ नेफ्रॉन सेल. ठीक है ना. दिस इज बोमेन कैप्सूल, this part PCT, this U-shaped structure is loop of Henle, next DCT, and the last is collecting tube. 1 2 3 4 5 पार्ट्स हैं नेफ्रॉन सेल के. अब इस नेफ्रॉन सेल को ब्लड वेसल्स ने रैप किया हुआ है. ब्लड वेसल्स 3 टाइप्स की होती हैं, बट यहाँ पर आपको 2 शो की है. वो कौन कौन सी है? देखो बच्चों, अगर ये किडनी है और ये जो स्पेस है इसको हम हाइलस बोलते हैं, तो जो आओर्टा है वो एंटर करती है एज द आपकी रीनल आर्टरी के फॉर्म में. रीनल यानी दैट इज रिलेटेड टू किडनी. तो जब वो अपने आप को एंटर करती है तो यहाँ पर बहुत सारे सेल है, मिलियंस में है नेफ्रॉन सेल. तो उसको हर सेल के पास पहुंचना है, हर नेफ्रॉन सेल को टच करना है. इस रीनल आर्टरी को, हर नेफ्रॉन सेल को, मिलियंस नेफ्रॉन सेल को टच करना है. आओर्टा ने अपने आप को डिवाइड किया 2 रीनल आर्टरी में, क्योंकि 2 किडनी थी. अब हर किडनी के पास मिलियंस नेफ्रॉन सेल है, तो उस रीनल आर्टरी को भी that renal arteries has to be divide itself into millions arteries, small million arteries to reach to the each cell of the kidney. अगर हर सेल के पास पहुंचना है तो उसको डिवाइड करना होगा, और वहां पर हम उसको आर्टरी वर्ड यूज नहीं करेंगे, वहां पर हम वर्ड यूज करेंगे आर्ट्रियोल. आर्ट्रियोल, वेरी फाइन आर्टरीज, बहुत ही पतली पतली आर्टरीज को क्या बोलते हैं? आर्ट्रियोल. तो यहां पर एक नेफ्रॉन सेल है, तो यहां पर एक ही आर्ट्रियोल मैंने आपको दिखाई है. बट जैसे ही वो बोमेन कैप्सूल के पास आती है तो वहां पर एक बंच बन जाता है, ब्लड कैपिलरीज का गुच्छा बन जाता है, जिसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस. ग्लोमेरुलस. तो ग्लोमेरुलस किसका पार्ट है? ये ब्लड वेसल का पार्ट है, नेफ्रॉन का पार्ट नहीं है. ग्लोमेरुलस, द बंच ऑफ ब्लड वेसल्स कॉल्ड ग्लोमेरुलस. ठीक है ना. फिर ब्लड आगे मूव होता है और वो मूव करता रहता है आर्ट्रियोल में. तो बट जैसे जैसे उसकी ऑक्सीजन कम होने लगती है, क्योंकि अब सेल यूज करेगा ब्लड को, उसके सेल्स यूज करेंगे तो ऑक्सीजन कम होती रहेगी. अब ऑक्सीजन कम होगी तो क्या होगा? ब्लड इज कन्वर्टेड इनटू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. तो इसलिए मैंने यहां पर ब्लू कलर से आगे कंटिन्यू किया है. ये है आपकी वेन्स दैट कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. इसको हम बोलते हैं रीनल वेन्यूल. वेन्यूल यानी काफी छोटी छोटी वेन्स. अब ऐसे मिलियंस रीनल वेन्यूल आपस में मिलेंगी तो बनेगी रीनल वेन, और 2 रीनल वेन किडनी से बाहर निकलेगी जिससे बनेगी वेना कावा. ठीक है ना. चलिए, तो ये ब्लड को वापस ले जाएगी. यहां से ब्लड आ रहा है, ब्लड वापस जा रहा है, बट सिर्फ, लेकिन ये बीच में इसको रैप क्यों किया हुआ है? फिल्ट्रेशन के लिए. इसको इसलिए रैप किया हुआ है क्योंकि आपका नेफ्रॉन सेल की जो सरफेस है वो भी काफी थिन है, और आर्ट्रियोल की भी सरफेस काफी थिन है. इतनी थिन है कि दे कैन एक्सचेंज देयर मटेरियल्स, अपने मटेरियल्स एक्सचेंज कर सकते हैं. इतनी पतली है उनकी सरफेस, और यहीं पर हमें बेनिफिट्स मिलेगा. एज द ब्लड कम इन द ग्लोमेरुलस हाई प्रेशर अराइजेस. यहां पर इतना ज्यादा प्रेशर अराइज हो जाता है कि आपके ब्लड के अंदर जो यूजफुल कंपोनेंट्स हैं, यूजफुल है या बैड कंपोनेंट्स है, दोनों ही प्रेशर की वजह से
बोमन कैप्सूल में आ जाते हैं। इतना ज़्यादा, इसको बोलते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। यहाँ पर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होती है, इतना ज़्यादा प्रेशर होता है ग्लोमेरुलस में कि आपके ब्लड के अंदर जो यूजफुल कंपोनेंट्स है लाइक प्रोटीन, विटामिन, वाटर भी यूजफुल है, ठीक है ना, और प्लस टॉक्सिक लाइक यूरिया, यूरिक एसिड, कैसा भी सबका सब आपका बोमन कैप्सूल में आ जाता है, ठीक है। फिर ब्लड आगे मूव करता है, फिर एंटर होती है पीसीटी सेक्शन की। पीसीटी सेक्शन में क्या होता है, इसको बोलते हैं प्रॉक्सिमल। प्रॉक्सिमल यानी पास में, नियर बाय। कॉन्वोल्यूटेड यानी कॉम्प्लेक्स, ट्यूबल यानी ट्यूब। एक ऐसी कॉम्प्लेक्स ट्यूब जो बोमन कैप्सूल के पास में हो, प्रॉक्सिमल हो, उसको बोलते हैं पीसीटी। और ऐसी कॉम्प्लेक्स ट्यूब जो डी डायस्टल, डायस्टल यानी फार अवे, दूर, तो उसको हम बोलते हैं डीसीटी। किससे दूर? बोमन कैप्सूल से दूर। ये पास में है इसलिए पीसीटी, दूर है इसलिए डीसीटी, ठीक है। इट इज अ इजी वे टू मेमोराइज दिस नेम। नाउ व्हाट हैपेंस हियर, यहां पर क्या होता है पीसीटी में? पीसीटी में जो यूजफुल सब्सटेंस है वो वापस कर दिए जाते हैं ब्लड को, कि हमें यूजफुल सब्सटेंस नहीं चाहिए, हमें तो चाहिए नॉन यूजफुल, जो बेकार है, जो टॉक्सिक सब्सटेंस है। तो टॉक्सिक सब्सटेंस नेफ्रॉन में रह जाते हैं और अच्छे सब्सटेंस ब्लड को वापस कर दिए जाते हैं। ब्लड आगे मूव करता है। व्हेन इट कम्स टू द लूप ऑफ हेनले, उससे पहले एक चीज और कि पीसीटी के अंदर 75% वाटर भी वापस कर दिया जाता है ब्लड को, क्योंकि ब्लड से 100% लगभग कंप्लीट वाटर ही ले लिया गया था बोमन कैप्सूल में, बट 75% रिटर्न कर दिया पीसीटी में। अब ब्लड जैसे आगे मूव होगा तो लूप ऑफ हेनले में आता है। लूप ऑफ हेनले क्या करता है? 10% और वापस कर देता है। 75% वाटर इसने रिटर्न कर दिया, 10% लूप ऑफ हेनले ने ब्लड को रिटर्न कर दिया। अब ब्लड के पास 85% वाटर वापस आ चुका है, ठीक है। फिर एंट्री होती है डीसीटी में। यहां पर होता है पीएच मेंटेन। किसका पीएच मेंटेन? फिल्ट्रेट का, जिसको हम यूरिन बोलते हैं। यूरिन का पीएच नॉर्मली 6.9 होता है, थोड़ा सा एसिडिक होता है, तो मेंटेन किया जाता है विद द हेल्प ऑफ पोटेशियम आयंस डीसीटी सेक्शन में। और फिर आपका जो ब्लड है वो मूव करता है वेन्स के थ्रू बाहर। वो वेन्स के थ्रू क्या होता है? बाहर चला जाता है, जिसके अंदर कोई भी टॉक्सिक सब्सटेंस नहीं है, क्योंकि सारा टॉक्सिक सब्सटेंस कहां रह गया? आपके नेफ्रॉन के पास रह गया। अब नेफ्रॉन उसको स्टोर थोड़ा करेगा, नेफ्रॉन उसको आगे ट्रांसफर कर देगा। नेफ्रॉन उसको ट्रांसफर करेगा कहां पे? आपकी कलेक्टिंग ट्यूब में। कलेक्टिंग ट्यूब से फिर वो आपके यूरेटर में जाएगा, यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर, और यूरिनरी ब्लैडर से बॉडी से बाहर। सो दिस इज अ फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन सेल।